Good morning and welcome to Pinnacle Public School presents the future of education. My name is Rohit Arora. I am director at the Pinnacle Public School and also a founding member of Transorganization, a company which actually works with many organizations and is committed to creating a sustainable world. Now, Pinnacle Public School is one of our most important and one of my personally very important venture where we will ensure that this world starts seeing a different class of education, not just India, world. The future of education is divided into four important pillars as described in a charter by UNESCO, and we are working very closely to ensure that we actually implement these four pillars in our. We are working very closely to ensure that we implement these four pillars in our school. Before I start my today's webinar, I would start the webinar with a prayer. So I would request all of you to please stand up wherever you are. Try to keep your cell phones, etc., aside for next 1 hour so that we can have a very constructive absorption. And I will open up the session for question answers, and then you can continue asking me respective questions. Please focus. This is extremely important for your life, for your child's life, and wherever you are, whatever you do, you are dealing with education in some way or the other. And as long as education does not include these four pillars, that education is incomplete, it is not holistic. I will today weave these four pillars in our life and how our life remains empty or incomplete if we do not put all these four pillars in our foundation of our life. Let's start with a prayer. All right. So let us start our discussion today about understanding these four pillars first. ये चार pillars actually education के हैं क्या? What are these four pillars of education? And why do we need these four pillars? To understand this, कि हमको ये चार pillars की जरूरत क्यों है और ये चार pillars हैं क्या, इसको समझने के लिए first we will have to understand the premise behind these four pillars. A student or a child can reach its fullest potential. वो अपना पूरा potential तभी reach कर सकता है when the education around him, जो जो ज्ञान उसे मिल रहा है, जो जो education उसे मिल रहा है, जो list of subjects उसके पास है, that education is holistic. What do you mean by education being holistic? What is the meaning of education being holistic? Education means is holistic when teaching is not a matter of facts. Teaching is not just telling who and what. Teaching is not developing just your mind and intelligence. जब teaching सिर्फ facts, जब teaching सिर्फ subjects, जब teaching सिर्फ intelligence तक सीमित रह जाती, जब teaching सिर्फ intelligence तक सीमित रह जाती है, वो teaching incomplete हो जाती है. टीचिंग के अंदर जब तक बच्चों को होलिस्टिक ह्यूमन बनाने का, होलिस्टिक ह्यूमन की तरफ क्रिएट करने का मैकेनिज्म नहीं है,
तब तक टीचिंग एक बच्चे को वो पूरा आहार नहीं देगी जिस आहार से वो एक पूर्ण स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता। आज जिस वर्ल्ड में आप जी रहे हो ना, आप आज जी रहे हो, और फ्यूचर जाके तो इट इज गोइंग टू बिकम इवन मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। आज जिस वर्ल्ड में आप जी रहे हो उसको अनसर्टन बोलते हैं, वो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है। ये वो वर्ल्ड है जहां पर अनसर्टनिटीज हर जगह पर है। ये वो वर्ल्ड है जहां एम्बिग्विटी हर मोमेंट पर है। आप कुछ भी करते हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, आप अल्टीमेटली बड़े होके इन दोनों जगहों में से एक चीज करोगे, या तो बिजनेस करोगे या अपना जॉब करोगे या अपने पैशन को परस्यू करोगे थ्रू म्यूजिक और वट एवर, बट अल्टीमेटली आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, चाहे वो फ्रीलांसर एंटरप्रेन्योर। आप इन दो चीजों के अलावा कुछ और करते नहीं हो, लेकिन इन दोनों में हमें वर्ल्ड से इंटरैक्ट करना है। अगर वर्ल्ड का इंटरैक्शन मेरा सिर्फ मेरी पढ़ाई तक सीमित है तो वर्ल्ड का इंटरैक्शन इनकम्प्लीट। तो मुझे वापस से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा जब मैं वर्ल्ड में जाऊंगा। स्टूडेंट बनना, स्टूडेंट रहना कंप्लीटली कंप्लीटली 24 आवर्स काम है, देर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हर मोमेंट पे जो मैं सीख रहा हूं, जो बचपन में बच्चा सीखता है, वो एजुकेशन कंप्लीट होनी बहुत जरूरी है। The speed at which this world is transforming, the speed at which exchange of information is happening, the speed at which multiple new ventures are taking birth, the speed at which businesses are failing, the speed at which stress is entering lives, ये सारी की सारी जो स्पीड एक स्ट्रेस को जन्म देती है ना, उस स्ट्रेस का कारण सिर्फ इतना है कि मुझे ना पूरी तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया, मुझे पूरी तरीके से रेडी किया ही नहीं गया है इस वर्ल्ड के लिए। तो हमारी एजुकेशन को, हमारे पढ़ने को, हमारी एजुकेशन को एक होलिस्टिक बनाने के लिए 4 पिलर्स की जरूरत है। ये 4 पिलर्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन जाएंगे किसी भी जीवन के लिए। ये 4 पिलर्स गाइडिंग प्रिंसिपल बन जाएंगे टीचर्स के लिए। ये 4 पिलर्स गाइडिंग प्रिंसिपल बन जाने चाहिए पेरेंट्स के लिए। क्योंकि एक बच्चे की लाइफ 2 बहुत बड़े एलिमेंट्स पे डेवलप होती है। पहला डेवलपमेंट जो उसके माँ बाप करते हैं घर पर, जो उसका माहौल करता है घर पर, और दूसरा एलिमेंट जो टीचर्स करती हैं स्कूल में। एज पेरेंट्स एंड एज टीचर्स आपको वरदान है, आपको ईश्वर का ब्लेसिंग है, वरदान है कि बचपन में आप जो बोलते हो, आपके मुख से जो निकलता है, वो बच्चा पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेता है। आप जो करते हो, आपके हाव भाव से जो निकलता है, वो बच्चा पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेता है। वो एक मिट्टी की तरह है और आप कुम्हार हो, यू आर द पॉटर, और आप उस मिट्टी को अपने व्हील पर डाल रहे हो, अपने जीवन के व्हील पर, और धीरे धीरे बच्चा उस तरीके से मोल्ड होता है। एक बात मैंने बहुत बार बोली है, आपके सामने आज बोलता हूं, बहुत सारे पेरेंट्स आज यहां पर बैठे, कि बच्चे आंखों से नहीं, सॉरी कानों से नहीं, आंखों से सुनते। बच्चे कानों से नहीं, आंखों से सुनते हैं। आप जो करते हो वो कॉपी करते हैं, आप जो होते हो वो बन जाते हैं। तो आपके हाथ में ना इस संसार का फ्यूचर आपके हाथ में। आज एक गंदा इंजीनियर बनेगा ना तो शायद पुल टूट जाएगा।
आज एक गंदा डॉक्टर बनेगा ना, तो शायद कुछ लोगों की शायद मृत्यु भी हो जाए। लेकिन एक खराब पेरेंट और खराब टीचर बन गया ना, तो पूरी की पूरी जनरेशन खराब हो जाती है। इस देश का, इस संसार का फ्यूचर खराब हो जाता है। आज इन बातों को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए मैं आपको 4 पिलर्स की बात करता हूं, और मैं कुछ हद तक आपको यह भी बताऊंगा हम कैसे इन 4 पिलर्स को पिनाकल स्कूल के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट पिलर, पहला पिलर, दिस पिलर इज कॉल्ड एज लर्निंग टू नो। पहला पिलर है लर्निंग टू नो। व्हेन आई से लर्निंग टू नो, इसका अर्थ क्या है, इसके पीछे का भाव क्या है? पहला पिलर लर्निंग टू नो। अब लर्निंग टू नो का बेसिकली मतलब सिर्फ इतना है कि इट इज बेटर टू नो हाउ टू लर्न देन टू नो। इट इज अबाउट लर्निंग बियॉन्ड फैक्ट्स। क्या सीखो, जो सीखना है उससे ज्यादा यह जरूरी है कि सीखते कैसे हैं। टीचर्स की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। ऑल्दो ये फैक्ट, ये प्रिंसिपल टीचर्स के अंदर भी होना चाहिए, ये फैक्ट पेरेंट्स के अंदर भी होना चाहिए। इट इज बेटर टू नो हाउ टू लर्न देन टू नो। ये जो पिलर है ना, इट गोज बियॉन्ड फैक्ट्स। ये पिलर ये बात कर रहा है कि मुझे ये सीखना है कि सीखते कैसे हैं। ये पिलर ये बात कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेट कैसे करते हैं, रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं चीजों को, इमेजिनेशन कैसे होती है, रीजनिंग कैसे होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं। हमारे स्कूल के एजुकेशन के अंदर ये एज्यूम्ड होता है यूजुअली, अगर प्योर प्ले करिकुलम फॉलो करें, ये एज्यूम्ड होता है कि अगर मैंने पढ़ा दिया तो बच्चा ये भी सीख लेगा कि उसने सीखा कैसे। हमने सिखाने के साइंस को कभी नहीं सिखाया, हमने सीखने के साइंस को कभी नहीं सिखाया। सो लर्निंग टू नो एक ऐसा पिलर है जिसके अंदर लर्निंग टू नो, ये ऐसा पिलर है जिसके अंदर पहला एलिमेंट है लिसनिंग। सुनते कैसे। हमने बहुत बार सुना होगा लिसनिंग और हियरिंग के बीच में डिफरेंस। सुनते कैसे, सुनने के बाद में थिंकिंग, सोचते कैसे, उसके बाद में कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट कैसे करते हैं, उसके बाद में मेमोराइज, मेमोराइज करने का रीजन क्या है, उसके पीछे का थॉट क्या है, उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। लर्निंग टू लो पहला ऐसा पिलर है जो कि बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। सीखना, सीखना एक एस्पेक्ट है, सीखने के साइंस को सीखना दूसरा एस्पेक्ट है। हमारे अगर इंडिया के हिस्ट्री में जाओ, एंशियंट वर्ल्ड में जाओ, तो इस बात पे बहुत फोकस दिया जाता था, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे बहुत फोकस दिया जाता था।
इसे बोला जाता था उस समय श्रवणम मननम निनिध्यासनम। श्रवणम मतलब सुनना, मननम मतलब कॉन्टेम्पलेट करना, सोचना, जो सुना उस पर सोचना, निनिध्यासनम मतलब उसको अपने जीवन में उतारना। ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट सुनने के साइंस और उसके ऊपर सोचने के साइंस पर है। हम बच्चों को सोचने का मौका नहीं देते। हम बच्चों को सिर्फ सुनाते हैं और बोलते हैं अब तुम याद करके आ जाना, या एग्जाम होगा तो आ जाना। लिसनिंग इज ए साइंस, थिंकिंग इज ए साइंस। ये नेचुरली भी डेवलप हो जाती है, लेकिन अगर इसको हमने तराशा बच्चे के जीवन में ना, अगर हमने इसको एक्चुअली में इम्बाइब किया बच्चे के जीवन में, तो ये जो फैक्ट है ये लिविंग रियलिटी बन जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइफ का एक बहुत बड़ा स्किल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके जीवन का बहुत बड़ा स्किल है। पिनाकल में हम ये कैसे कर रहे हैं, किसी भी चीज को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में और अपने स्कूल में, तो 3 चीजों की बहुत जरूरत है। और ये 3 चीजों को हम हर एस्पेक्ट में पिनाकल के स्कूल में डाल रहे हैं। तो पहला चीज, टीचर्स। टीचर्स का स्पेसिफिक ट्रेनिंग इस एस्पेक्ट पे होने वाला है। हम कुछ वर्ल्ड क्लास टीचर्स को भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिनको हम एज विजिटिंग फैकल्टी अपने स्कूल में लेकर आएंगे। ये वो टीचर्स होंगी जिन्होंने ये वो टीचर्स हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर अपनी छाप छोड़ी है। वी विल बी ओपनिंग अप दैट interesting funnel where teachers will start coming in from outside environment and will give best in class education to our children at Pinnacle Public School. ये वो एजुकेशन है जो शायद बहुत कम लोगों को मिलती है। सो ऑन वन साइड हम अपने टीचर्स को स्ट्रॉन्ग डेवलप कर रहे हैं, ऑन द अदर साइड हम बेस्ट इन क्लास टीचर्स को एज विजिटिंग फैकल्टी अभी स्कूल में इनवाइट करने हैं। ये प्रोसेस अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये वो टीचर हैं जो सब्जेक्ट तो अच्छे से सिखाते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट को सीखना कैसे है अपने आप, वो भी सिखाते हैं। और एक अच्छे टीचर में सिर्फ यही अंतर होता है, वो कंटेंट नहीं सिखाता, वो कंटेंट के बियॉन्ड जाता है और कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है। वो कॉन्सेप्ट के भी बियॉन्ड जाता है और टीचिंग के ऊपर फोकस करता है कि सीखते कैसे। बहुत सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी स्टार्ट हो रही हैं स्कूल के अंदर, एंड आपके बच्चे शायद आपसे बात भी करते होंगे। हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो कि कोर्स स्टार्ट किया है, जो कि किसी भी स्कूल में अवेलेबल नहीं है। उस कोर्स का नाम है साइंस ऑफ सेल्फ। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, आईबी हो, व्हाटएवर इट इज, वो एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली बाहर की तरफ है, आउटसाइड सेंट्रिक है। वो एजुकेशन सिस्टम अंदर की साइंस को नहीं सिखाता। और आज हम पिनाकल पब्लिक स्कूल के अंदर, चाहे वो कोई भी स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक, हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी एलिमेंट्स डाल रहे हैं जो कि बच्चों को फ्यूचर के लिए रेडी करेंगे।
उनका कोर्स सीबीएसई का हो या आईसीएसई का हो या कोई भी हो, सीबीएसई का कोर्स तो कंप्लीट होगा ही होगा, उसका तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन वो कोर्स तक सीमित नहीं रहने वाले, क्योंकि जब वो 12वीं कक्षा के बाद, 12th के बाद जब वो बाहर जाएगा, चाहे वो इंजीनियरिंग ज्वाइन करे या चाहे वो मेडिकल ज्वाइन करे, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो यूएस जाए, चाहे वो इंडिया में रहे, चाहे वो एंटरप्रेन्योर बने, चाहे वो कोई भी कॉलेज ज्वाइन करे, चाहे वो आर्ट्स करे, चाहे वो कॉमर्स करे, ये स्किल तो उसको वैसे भी चाहिए। क्योंकि चाहे वो साइंस करे, आर्ट्स करे, कॉमर्स करे या कोई प्रोफेशनल कोर्स करे, अल्टीमेटली जाके या तो बिजनेस करेगा या जॉब करेगा। और वहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, सीखना, थिंकिंग, लिसनिंग, कंसंट्रेशन, ये सब की जरूरत पड़ने वाली है। और ये पहला एलिमेंट हम बिल्ड कर रहे हैं लर्निंग टू नो का, with best in class teachers. As I said, we have also started working on creating a best in class course. So there is, apart from CBSE being taught, we're also introducing a course called a Science of Self, which is already introduced in the school. और साइंस ऑफ सेल्फ के अंदर इन स्पेसिफिक लाइफ स्किल्स के ऊपर काम होने वाला। सो विल बी गेटिंग best in class education and training for our children, our teachers. And we'll be introducing best visiting faculty in the school. अभी बेस्ट विजिटिंग फैकल्टी मैथमेटिक्स पढ़ाएगी, ये बेस्ट विजिटिंग फैकल्टी साइंस पढ़ाएगी। मैंने स्टैंडर्ड नहीं बोला, क्योंकि अगर मुझे पढ़ना आ गया, किसी ने मुझसे पूछा था कि बेस्ट टीचर कौन होता है। बेस्ट टीचर दुनिया में होता ही नहीं। बेस्ट फैकल्टी हो सकता है, बेस्ट टीचर नहीं होता, क्योंकि बेस्ट टीचर तभी होता है जब स्टूडेंट बेस्ट होता है। अच्छा टीचर नहीं बन सकते और अच्छे टीचर को ढूंढ नहीं सकते, लेकिन अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। और अगर हमने अपने बच्चों को अच्छा स्टूडेंट बना दिया, तो वो बेस्ट टीचर ढूंढ लेगा, चाहे वो यूट्यूब में ढूंढ ले, चाहे वो अपने स्कूल के टीचर में ढूंढ ले, चाहे वो अपने कोलीग में ढूंढ ले, अपने पीयर में ढूंढ ले, अपने बच्चों में, अपने आसपास के घर में ढूंढ ले, नेबरहुड में ढूंढ ले। गोल ऑफ लर्निंग टू नो इज टू मेक बेस्ट स्टूडेंट्स, not successful students, best students, because best students will become successful ultimately. Best students will become successful ultimately. So step number 1, learning to know. तो टीचर्स, कोर्स, और तीसरा एलिमेंट है एनवायरमेंट। बच्चे एनवायरमेंट से ज्यादा सीखते हैं। मुझे याद है जिस समय मैं आई वाज इन आईआईटी बॉम्बे, तो शायद मैंने प्रोफेसर से इतना नहीं सीखा होगा, शायद मैंने वो कोर्स कंटेंट से ऐसा नहीं सीखा होगा जितना मैंने आईआईटी के एनवायरनमेंट से सीख लिया। मेरे अच्छा स्टूडेंट जो होता है ना, वो अपने फ्रेंड से सीख लेता है, हमारे ग्रुप से सीख लिया। प्रोफेसर से उतना नहीं सीखा, उनसे भी सीखा, लेकिन उनसे उतना नहीं सीखा जितना मैंने उस एनवायरनमेंट रहने से सीखा। होलिस्टिक डेवलपमेंट, चाहे वो ड्रामेटिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का कोर्स हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो नॉवल हो, चाहे वो मूवी ही हो, हर जगह पे एक अच्छा स्टूडेंट
सीखने को कुछ ना कुछ ढूंढ लेता है। अच्छा स्टूडेंट बनाने का पहला पिलर है लर्निंग टू नो, बिकॉज ये वो साइंस है कि जिसमें आप सोचना सीखते हो, ये वो साइंस है जिसमें आप सीखना सीखते हो। सेकंड पिलर, दूसरा पिलर, लर्निंग टू नो के बाद जो दूसरा पिलर आता है आपकी लाइफ का, उसे बोलते हैं लर्निंग टू डू। टू लर्न, स्टीफन कॉवी ने कहा था, टू लर्न एंड नॉट टू डू इज रियली नॉट टू लर्न। हाउ डू यू मास्टर, हाउ डू यू मास्टर, जो मैंने सीखा मैं उससे अप्लाई करूं। ये जो मास्टरी है ना एप्लीकेशन की, वो रियल लर्निंग है। क्योंकि किताबों से, दूसरों से और अपने बैठ के सोचने से आप एक हद तक सीख सकते हो, लेकिन जब उसको एप्लीकेशन में डालते हो तो सीखने का लेवल बढ़ जाता है। एज पेरेंट्स आप सबको ये पता होगा, आप कुछ ना कुछ कर, या तो बिजनेस करते होंगे या फिर कहीं जॉब करते होंगे। जो आप करते हैं ना, जो जॉब आप करते हैं या जो बिजनेस आप करते हैं, उसके लिए वो किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। एज रोहित, एज ट्रांसगनाइजेशन, हम तो आई मीट thousands of entrepreneurs every day, many employees every day। और एक डायलॉग ना एंटरप्रेन्योर्स या फिर बिजनेसमैन बोलते रहते हैं बार बार, वो बोलते हैं कि मुझे ना एमबीए करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा काम ही मेरा एमबीए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर काम ही एमबीए है तो यानी कि कुछ करना एमबीए है, यानी कुछ करने से जो सीखता है आदमी, वो कुछ सीखने से सीखता नहीं। तो जो मैंने सीखा, चाहे मैंने वो लाइट का कॉन्सेप्ट सीखा, जो मैंने सीखा, चाहे मैंने वो सिंपल मैथ्स का एक फॉर्मूला सीखा, उसका एप्लीकेशन जो मुझे उस फॉर्मूले को परमानेंट कर देगा ना, वो सिखाना नहीं करेगा, वो सिखाना नहीं करेगा। सीखने से आदमी इतना नहीं सीखेगा जितना करने से सीखेगा। तो सेकंड पिलर ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग टू डू। सेकंड पिलर ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग टू डू। मेरी लाइफ के अंदर, एजुकेशन की लाइफ के अंदर, जितना मैंने लोगों को सीख करने से सीखते हुए देखा है ना, उतना बुक्स में पढ़ने से सीखते हुए नहीं देखा है। सो लर्निंग टू डू, लर्निंग टू डू में क्या क्या आता है, लर्निंग टू डू में क्या क्या आता है। लर्निंग टू डू के अंदर आपका स्पेसिफिकली वो एस्पेक्ट जहां पर आप पर्सनल इनिशिएटिव्स लेना सीखते हो, जहां पर आप विलिंगनेस टू टेक रिस्क कर लेना सीखते हो, जहां पर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हो, जहां पर आप अडेप्टेबिलिटी सीखते हो, सोशल बिहेवियर सीखते हो। लर्निंग टू डू इज अबाउट व्हाट इज योर सोशल बिहेवियर। एंड लर्निंग टू डू का एक बहुत बड़ा काम है, जो आपने किया उसे अप्लाई करना, जो आपने किया उसको अपने जीवन में उतारना, किसी भी फॉर्म में, किसी के कहने पर नहीं, खुद के इनिशिएटिव। लर्निंग टू डू में टीचर्स, मैं वापस से पिलर्स पे आ जाता, टीचर्स
का रोल है बच्चों को एप्लीकेशन सिखाना। कोर्स का ऑब्जेक्टिव है वो एप्लीकेशन के लिए उसको इनिशिएटिव दिलवाना, वो चीज उसने आज तक कभी नहीं करी, देखो ना कैसे कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख लिया मैथ्स में, या ट्रिग्नोमेट्री सीख लिया मैथ्स में, अब ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके क्या मैं घर पे कोई ऐसी चीज बना सकता हूं जो कि उसका एप्लीकेशन होगा? ये सोचना, ये सोच डेवलप करना। अगर आपने आर्ट सीखा, आप पेंटर हो, आपको आर्टिस्ट, आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, तो क्या वो ड्राइंग से मैं अपने घर की दीवार को सजा सकता हूं कि उसके लिए इंटीरियर डिजाइनर को ही बुलाना पड़ेगा? जिस एनवायरमेंट, थर्ड एलिमेंट, जिस एनवायरमेंट में आप रहते हो, अगर वो एनवायरमेंट आपका लैब ना बन पाया तो वो एनवायरमेंट वेस्ट हो जाए। बच्चों को ऐसा एनवायरमेंट देना है कि वो लैब बन जाए। उसको ऐसे इक्विपमेंट से इक्विप करो कि वो हर जगह पे अपने अपने आर्ट को, अपने स्किल को एक्सप्रेस कर सके। एट पिनाकल पब्लिक स्कूल वी आर टेकिंग सच इनिशिएटिव्स। हम इसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग टू डू। मतलब जब जब बच्चा करना शुरू करता है, जब बच्चा करना शुरू करता है, तब वो एप्लीकेशन तो करता ही है, तो लर्न होता है करने का। और करते करते जो लर्न करता है वो एकदम स्ट्रांग हो जाता है। चलो, हमने फिजिक्स सीखा, नाइन्थ का बच्चा है, टेंथ का बच्चा है, 11th का बच्चा है, उसने फिजिक्स में बहुत कुछ सीखा है। कॉन्सेप्ट कौन सा सीखा है वो मैं नहीं पूछ रहा हूं, फिजिक्स तो सीखा। क्या वो सारी की सारी फिजिक्स को यूज करके एक बॉटल को रॉकेट में कन्वर्ट कर सकता है? हमारा सीबीएसई का सिलेबस, हमारा लैब का सिलेबस शायद हमको सीमित कर देता है ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। लेकिन पिनाकल पब्लिक स्कूल के अंदर हमने साइंस ऑफ सेल्फ के अंदर एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बहुत सारे मॉड्यूल्स डाल दिए। वो एक पीरियड है जब आप जाओ और एक्सपेरिमेंट करो। हमारे टीचर्स आपको ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जहां पर आप गलतियां करो, कोई मार्क नहीं लग रहा आपका इसके ऊपर, गलती करना सीखो, गलती करना सीखो। और गलती करते करते फिर सीखो, रिस्क लेना सीखो। अब अपने बच्चों से बच्चे देखेंगे आपके माँ बाप को, आप सब लोग लाइफ में कितने रिस्क लेते हैं। रिस्क लेकर ही एक्चुअली लिविंग का, लाइफ का जन्म होता। रिस्क तब नहीं लेना है जब आपको अभी मजबूरी है रिस्क लेने की। बच्चों को आदत डालनी है एक्सपेरिमेंट करने की। कोई रिस्क इतना होता नहीं है एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। तभी एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा पिलर, एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है। एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जब हम बच्चों को रिस्क टेकिंग सिखाएंगे, तो जो छोटे छोटे वृत्तियां हैं उनके अंदर चली जाएंगी और एक संस्कार का जन्म होगा। छोटे छोटे एक्शन संस्कार को जन्म देते हैं।
आज एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जब बच्चे ने अपने सीखी हुई चीज को, थियोरी को एप्लीकेशन में डालने की कोशिश की और उसका आहा हुआ, अरे वाह ये तो एक्चुअली होता है, तो एक्चुअली होता है, तब जो वो उस प्रोसेस से सीखेगा वो प्रोसेस कभी भी डाई आउट नहीं। तो लर्निंग टू डू सेकंड इंपॉर्टेंट पिलर है। हम अपने टीचर्स को कंप्लीटली फ्रीडम दे रहे हैं कि जाओ हेल्प करो बच्चों को रिस्क लेने का। एट द सेम टाइम जो विजिटिंग फैकल्टी आने वाला है, उस विजिटिंग फैकल्टी का तो एनीवे नेचर है कि बच्चों से वो करवाना जो शायद वो एक रेगुलर सीबीएसई स्कूल में या फिर एक रेगुलर घर के अंदर ट्यूशंस में वो नहीं करता, कोचिंग में नहीं करता। सीबीएसई और कोचिंग और एग्जाम्स बच्चों को डिग्री दिलाएंगे, लेकिन ये 4 पिलर्स जिसमें से 2 पिलर्स लर्निंग टू डू, लर्निंग टू नो है, वो बच्चों की जिंदगी बनाएंगे। और आप सबको पता है, कहीं ना कहीं दिल पे हाथ रख के पूछो, आप सबको पता है डिग्री सिर्फ चाबी है दरवाजे में घुसने के लिए, उसके बाद तो अंदर रहना आना चाहिए। डिग्री आपको वहां रखवा नहीं सकती। सीवी आपका, रेज्यूमे सिर्फ चाबी है अंदर घुसने के लिए, लेकिन एक बार अंदर घुसे ना तो घर में रहना आना चाहिए। आपको कोई भी सैलरी नहीं देगा अगर आपको सीखना नहीं आता, अगर आपको भूलना नहीं आता, अगर आपको करना नहीं आता, नहीं देगा। आपको कस्टमर रेवेन्यू नहीं देगा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बच्चों को सिखा दें तो ये देश का, उनके जीवन का, आपके घर का, इस संसार की नेक्स्ट पीढ़ी का जीवन सुधर जाए कंप्लीटली, फुल रूपांतरण, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। सो लर्निंग टू डू में इनिशिएटिव टेकिंग, रिस्क टेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग हर जगह पर है, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अब आता है तीसरा पिलर, थर्ड पिलर। द थर्ड पिलर is learning to live together. Learning to live together. अगर हमें हार्मनी में जीना नहीं आता, अगर हमें साथ में ग्रो करना नहीं आता, अगर हमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना नहीं आता, तो आपको कितना मर्जी अच्छा आईक्यू हो आपका, कितना भी अच्छी पढ़ाई कर ली हो, कितना भी बड़ी डिग्री हो, सब वेस्ट है। अगर दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट देना नहीं आता, अगर साथ में मिलकर काम करना नहीं आता, तो इन अ वे आपको जीना नहीं आता। हम बच्चों को अगर जीना नहीं सिखा पाए तो पढ़ाई कराने का कोई फायदा भी नहीं। बच्चा स्कूल में अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, आपके घर में, आपके एनवायरनमेंट से साथ रहना सीखता है। वो तो इसका एक बहुत बड़ा टीचर है। एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा टीचर है, लेकिन अगर उस एनवायरनमेंट में प्रोएक्टिव इनिशिएटिव्स आ जाएं और कुछ प्रिंसिपल्स को उसके
जड़ों में, बच्चों की जीवन की जड़ों में, उनकी फाउंडेशन में डाल दिया जाए, तो आप एक पीढ़ी को एकदम जन्म देते फ्यूचर की। मैंने एक विचार प्रेजेंट किया था एक एक प्रोमो में, जो मैंने आपको भेजा, वापस रिपीट करता हूं। वो विचार ये था कि अगर मैं किसी का छीन के खाऊं, और जो मैं बोल रहा हूं ना, किसी का छीन के खाना, ये लगता होगा शायद मैं बड़ा गलत बोल रहा हूं, लेकिन आप अपने आसपास देखो, आसपास देखो, एक्सेसिव प्रेशर ऑफ कंपटीशन क्या करवा रहा है हमसे, क्या सिखा रहा है। अगर मैं किसी का छीन के खाऊं तो विकृति है, वो मन की, संस्कार की, अंदर के जीवन की विकृति है। मैं अपना खाऊं, वो अपना खाए, ये प्रकृति है। प्रकृति यही बोलती है, अपना अपना कर। लेकिन दूसरे की चिंता करूं, पहले वो खाए, पहले सब खाएं, फिर मैं खाऊं, ये संस्कृति है। अगर ये संस्कृति हम अपने बच्चों के अंदर ना डाल पाए, तो वो अपने आप को समाप्त कर देगा। आज जिस संसार में आप जी रहे हो, जिस वर्ल्ड में आप जी रहे हो, डिप्रेशन के केसेस, आप ऐसे पत्थर फेंको ना, आदमी डिप्रेस्ड ही हो, स्ट्रेस्ड ही हो, चिंता में ही होगा। क्यों चिंता में, क्यों डिप्रेशन में? दो कारण। पहला कारण अहंकार, कि मुझे सब कुछ आता है, और जो आप बोल रहे हो ना, वो तो मुझे पता है, मुझे सब कुछ आता है। ऐसा मनुष्य अपने जीवन को ज्ञान से भाव में कभी कन्वर्ट नहीं कर पाता। उसका जीवन ज्ञान ज्ञान में, ज्ञान ही रह जाता है वो खाली। पहला। दूसरा कारण, पहला कारण अहंकार, दूसरा कारण डिप्रेशन का कारण सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस। डिप्रेशन का कारण सिर्फ ये है कि उसने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा। डिप्रेशन का कारण सिर्फ इसलिए है कि वो मेरे लिए कुछ क्यों नहीं करता या करती। डिप्रेशन का कारण सिर्फ ये है कि इंसान बड़ा सेल्फ सेंट्रिक है। वो सिर्फ ये सोचता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं आती, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और मैं ही क्यों। ये बड़ी अमेजिंग पर्सनालिटी है ह्यूमन की। जब उसका अच्छा अच्छा होता है ना, तब वो ये नहीं बोलता कि मेरे साथ ही अच्छा क्यों हुआ। लेकिन जब उसके साथ बुरा होता है ना, तब वो ये जरूर बोलता है कि आई डोंट डिजर्व दिस। यू डिजर्व वॉट एवर यू डिजर्व, यू गेट वॉट एवर यू आर गेटिंग, यू डिजर्व दैट ओनली। हमको, बच्चों को दूसरों के लिए जीना सिखाना है। हमको बच्चों को आवाज उठाना सिखाना है। आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, इनिशिएटिव लेना सिखाना है। ये नहीं सिखाना कि अरे वो मेरा काम नहीं है ना, वो उनका काम है, छोड़ो ना। हमारे साइंस ऑफ सेल्फ के करिकुलम में सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन, बिना किसी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न के कंट्रीब्यूट करना, सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन
का बहुत बड़ा महत्व दिया गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इस जीवन का सिर्फ दो ही मकसद है, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, मतलब स्वयं का फ्रीडम और जग का हित, दूसरों का हित, जग का भला करो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, हर वो कर्म जो सृष्टि के उद्धार के लिए किया जाता है वो पाप रहित होता है। जीसस क्राइस्ट ने कहा था, लव इज द ओनली आंसर, सर्व द वर्ल्ड, सर्व द मैनकाइंड, देयर इज अ गॉड इनसाइड हिम। जैन धर्म में महावीर ने कहा था अहिंसा, अहिंसा का अर्थ है, जो उनका अर्थ था ये था कि अपना खुद का अगर इतना सा भी आपने वहां पर महत्व दिखाया तो आपने हिंसा कर दी। वो तो बोलते थे कि अगर आपने आपका प्रेजेंस भी फील करवाया ना तो आपने हिंसा कर दी। घुल जाना, लर्निंग टू लिव टुगेदर। जब आदमी घुल जाता है ना शक्कर की तरह पानी में, तो पानी मीठा हो जाता है। शक्कर बनो। शक्कर बनना सिखाना बच्चों का सबसे पहला सीख होनी चाहिए। शक्कर बनना, चीनी बन जाना, और कहीं पर भी हो वहां मिक्स हो जाना कंप्लीटली। आपके होने से उस जल का हर कण मीठा हो जाए, उस एनवायरनमेंट का हर एनवायरनमेंट मीठा हो जाए, आपके बच्चों को यह सिखाना। लेकिन एक बात समझ लें, मैं वापस उस स्लाइड पे जा रहा हूं जिसमें मैंने वो ट्रायंगल बनाया है। घर के टीचर आप हो, घर का एनवायरनमेंट आप बनाते हो, घर का सिलेबस आप बनाते हो। स्कूल के टीचर हम बनाएंगे और बना रहे हैं बेस्ट पॉसिबल करिकुलम, वर्ल्ड क्लास। सीबीएसई तो हम पढ़ाएंगे ही, लैब तो हम कराएंगे ही, प्रैक्टिकल तो होंगे ही, लेकिन उससे तो सिर्फ इंसान का रिज्यूमे बनेगा, डिग्री मिलेगी, चाबी मिलेगी, इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके साथ साथ अगर जीना नहीं सिखाया ना, खुद को जीना नहीं सिखाया, तो वो उस घर के अंदर रह नहीं पाएगा। हमारी टीचर्स को हमने बहुत स्पेसिफिकली ट्रेन किया है, कंटिन्यूअस मैसेज है उनके लिए लाइफ में कि बच्चों को जहां वो चाहे वहां वो परिवार बना दे। उनको परिवार में रहना सीखना नहीं है, वो जहां जाए वहां परिवार बन जाए। जो सिर्फ अपने लिए जीता है ना वो स्वार्थी है, जो अपने लिए जीता है वो स्वार्थी है। जो अपने लिए जीता है वो स्वार्थी है। ऐसा बच्चा हमें नहीं चाहिए, ऐसा हमें एडल्ट भी नहीं चाहिए, ऐसा सिटीजन नहीं चाहिए, ऐसा दुनिया में कोई नहीं। जो सिर्फ परिवार के लिए जीता है वो परिवार्थी है। अच्छा है, गुड, अपने परिवार की चिंता करता है, अपनी फैमिली की चिंता करता है, वेरी गुड, इतना होना चाहिए। लेकिन जो अपने समाज के लिए जीता है वो परोपकारर्थी है, उसके अंदर परोपकार की भावना कंप्लीटली आती रहती है। लेकिन जो संसार के लिए जीता है वो परमार्थी है। ये लोग लीडर्स बनते हैं। यहां महात्मा गांधी का जन्म होता है, यहां इब्राहिम लिंकन का जन्म होता है, यहां पर आइंस्टाइन का जन्म होता है, यहां एडिसन का जन्म होता है, यहां स्टीव जॉब्स का जन्म होता है, यहाँ बिल गेट्स का जन्म होता है, यहाँ वॉरेन बुफे का जन्म होता है, यहाँ नारायण मूर्ति का जन्म होता है, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म होता है।
यहाँ सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है। जो संसार के लिए जीते हैं वो परमार्थी हैं, यहाँ भगत सिंह का जन्म होता है। ऐसे ही बनते हैं अब्दुल कलाम आजाद, ऐसे ही बनते हैं हमारे लीडर्स, ऐसे ही बनते हैं राधा कृष्ण पिल्लई, ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं स्वामी विवेकानंद। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस संसार को आगे बढ़ाया है। ये वो लोग हैं जिसने इस पूरे के पूरे समाज को आगे बढ़ाया है। हम तो उस समाज में रह रहे हैं ना, लेकिन इसको क्रिएट इन लोगों ने किया है। हमें अपने बच्चों को क्रिएटर बनाना है, फॉलोअर नहीं बनाना है। लर्निंग टू लिव टुगेदर एक सोशल फैब्रिक का पार्ट है। लर्निंग टू लिव टुगेदर एक सोशल फैब्रिक का पार्ट है। Mr. Balwani, I will answer your question. Relax. Give me some time. Learning to live together एक सोशल फैब्रिक का पार्ट है। लर्निंग टू लर्न, हमको बच्चों को क्यूरियस बनाना है। सोचो, क्वेश्चन करो, डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर आपने ना ढूंढा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड डोंट लीव एनी आंसर अनक्वेश्चन। जाओ टीचर्स को क्वेश्चन करो, क्यों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया, क्यों। मेरा बेटा एक, उसको टीचर पढ़ाने आई साइंस की, उसने उससे पूछा, बहुत छोटा था वो, आई थिंक 6 साल का होगा, 6-7 साल। टीचर ने उससे बोला कि लीफ इज लीफ कैन मेक सॉरी लीफ इज ग्रीन। तो उसने पूछा कि ओके व्हाई इज लीफ ग्रीन। तो टीचर ने बोला उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, दैट्स व्हाई इट इज ग्रीन। ओके, व्हाई इज क्लोरोफिल ग्रीन? एंड टीचर स्टॉप्ड, शी कुड नॉट आंसर बियॉन्ड दैट। टीचर को नहीं आना चलता है, ऑब्वियसली हर टीचर को सब कुछ नहीं आ सकता और पॉसिबल भी नहीं। अब इस पॉइंट के बाद टीचर दो चीजें कर सकती है। वो बोल सकती है, अरे बेटा वेरी गुड, अमेजिंग क्वेश्चन, मैंने भी नहीं सोचा, चलो ढूंढते हैं आंसर। सामने यूट्यूब खोले, गूगल खोले, ढूंढे, एनसाइक्लोपीडिया खोले, ढूंढे, पढ़े और बोले कि अरे वाह, आज मैंने भी तुमसे कुछ सीखा। प्रश्न सिखाते हैं। और दूसरा टीचर क्या बोले कि ये सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो। ऐसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? आपने बच्चे की इनक्विजिटिवनेस को मार दिया, लर्निंग टू नो के पिलर को तोड़ दिया। लर्निंग टू नो के पिलर को तोड़ दिया। ये है पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट, लर्निंग टू नो। सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट, लर्निंग टू डू। थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट, लर्निंग टू लिव टुगेदर। आपने कभी कैटरपिलर को देखा है? साइंस बोलती है कि वो 2 पार्ट में चलता है, काट दोनों बीच में कट जाए ना, तो वो इस तरफ भी जाएगा उस तरफ भी जाएगा। हमने ये सोच लिया, एक तो है साइंस का वंडर, अरे वाह अमेजिंग, नेचर ने क्या अमेजिंग चीज बनाई है। क्या हमने कभी देखा है कैसा होता है? वो इनक्विजिटिवनेस अंदर से जो बच्चे की आती है उसे मरने नहीं देना। एनवायरमेंट ऐसा बनाओ कि बच्चा सीखना सीखे, वो क्यूरोसिटी उसकी मरे नहीं, बढ़ जाए। एनवायरमेंट ऐसा बनाओ, देखो मैं 3 कोणों की बात करूंगा अभी। एनवायरमेंट ऐसा बनाओ कि बच्चे सीखना सीखे। एनवायरमेंट ऐसा बनाओ कि बच्चे उस सीखी हुई चीज को एक्सपेरिमेंट करने से डरे नहीं, रिस्क टेकिंग सीखे। एनवायरमेंट ऐसा बनाओ कि बच्चे साथ में करना सीखें, छुप छुप के नहीं, साथ में करना सीखें।
टीचर्स ऐसी बनाओ, खुद को ऐसा बनाओ कि बच्चों को आप ये एनवायरनमेंट दे सको। उसके प्रश्नों को मारो मत, उनके प्रश्नों को अपने लिए सीख बना दो। ढूंढो, वर्ल्ड बड़ा है आंसर के लिए। ऐसा तो नहीं कि भी आपको सिर्फ चर्च में जाके आंसर ढूंढना है या टेंपल में जाके आंसर ढूंढना है। अब तो आपके पास गूगल है, आपके पास, हम उस वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां पर आंसर्स अवेलेबल हैं आज 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 अभी। घर का एनवायरनमेंट और स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चे होलिस्टिक ह्यूमन बने। लास्ट पिलर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, आप सब जीवन में समझ लेना। पहले दो पिलर जो थे ना, लर्निंग टू नो, वो सीबीएसई में होता भी है। लर्निंग टू डू भी कुछ हद तक होता है, लैब होती है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, आर्ट होता है, डांस भी होता है स्कूल के अंदर, आर्ट किया जाता है, बहुत कुछ होता है। लर्निंग टू लिव टुगेदर सिर्फ एनवायरनमेंट पे छोड़ दिया जाता है, उससे खाली होगा नहीं। वापस से वो ट्रायंगल देख लीजिए। हर पिलर के लिए लर्निंग टू लिव टुगेदर, कोलैबोरेशन, रेजिंग योर वॉइस, सेल्फलेस बिहेवियर और कंट्रीब्यूशन, लव। ये सिर्फ एनवायरनमेंट पे छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसमें भी कोर्स चाहिए और इसमें भी टीचर चाहिए। हमने ये चीज को पिनाकल स्कूल में बहुत डीपली डाला है। हमारे साइंस और सेल्फ के कोर्स के अंदर इस एस्पेक्ट को एड्रेस किया जाता है। टीचर्स, सब टीचर्स को जो इस साइंस और सेल्फ करा रही हैं, उनको स्पेसिफिकली इस पार्ट को कैसे डील करना है, उसके लिए उनको ट्रेन किया जाता है। किसी भी पिलर में अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो वो पिलर टूट जाएगा। अब आता है थर्ड, फोर्थ पिलर। फोर्थ पिलर इज अबाउट फोर्थ पिलर इज अबाउट लर्निंग टू बी। मैं लिख देता हूं यहां पर। लर्निंग टू बी मतलब क्या? आई एम श्योर मेरे यहां पर जितने लोग बैठे हैं अभी, बहुत सारे उसमें बिजनेसमैन हैं। हमारा स्कूल फॉर्चुनेटली गुजरात में है, और गुजरात तो वैसे भी एंटरप्राइजिंग जगह है, तो यहाँ पर तो बिजनेसमैन की संख्या बहुत ज्यादा है। एक बड़ा कॉमन वर्ड मैं सुनता हूं, और मुझे लगता नहीं है कि वो सच है, लेकिन मैंने गुजरात में ना चीज सुनी है कि यहाँ पर ना पेरेंट्स को बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उनको बिजनेस कराना। तो मेरे माइंड में ये बात बार बार आती थी कि ये दोनों चीजें, मेरे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स हैं, वो भी बोलते थे क्या पढ़ाना, क्या करेगा पढ़ के, बिजनेस कर, धंधा कर। बिल्कुल सही है, धंधा करना चाहिए, वो तो करना ही है, लेकिन बिजनेस बिना पढ़ाई के, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। फिर एग्जांपल आता, धीरू भाई अंबानी ने क्या पढ़ा? बिल्कुल सही है, क्या पढ़ा था? तो मतलब, क्योंकि उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो इनक्विजिटिव नहीं थे। वो इनक्विजिटिव थे, गॉड गिफ्टेड इनक्विजिटिव थे। इनक्विजिटिवनेस, क्वेश्चन पूछने की ताकत थी उनमें, रिस्क टेकिंग थी, लर्निंग टू नो, इनक्विजिटिवनेस थी उसमें। वो एक बड़े अच्छे स्टूडेंट थे। लर्निंग टू डू, वो रिस्क लेते थे, कर लेते थे, फिर देखेंगे क्या होगा। इनिशिएटिव लेते थे। लर्निंग टू लिव टुगेदर, इतनी बड़ी कंपनी बनाई, सबको साथ रखा, परिवार को साथ रखा, उनको आता था, गॉड गिफ्ट था। लेकिन क्या इसे सिखाना नहीं चाहिए? क्या इसे सिखाने में प्रॉब्लम है? सीखने में प्रॉब्लम है?
ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, हम सीधे खड़े हैं। और मेरे पिताजी ये बहुत बोला करते थे बचपन से कि सबसे पहले ये, उसके बाद हाथ आता है। तो पहले ज्ञान पे फोकस कर, हाथ बाद में। जब तक थियरी नहीं आएगी, इस हाथ का कुछ फायदा नहीं। ये बात मेरे को बैठ गई मन। बहुत ही अमेजिंग बॉडी का स्ट्रक्चर। कहते हैं हम जानवर नहीं है, हम ऐसे नहीं है कि सब कुछ एक साथ कर लिया। हम मनुष्य हैं, हमको सीधा खड़ा करा है। इसके पीछे कारण है, ऊपर से नीचे जाना है। पहले दिमाग, पहले इस फैकल्टी को स्ट्रॉन्ग कर, फिर हाथ को यूज करना। तो लर्निंग टू नो, ये फैकल्टी सिर्फ कंटेंट से स्ट्रांग नहीं होती है, इनक्विजिटिवनेस से स्ट्रांग होती है, क्वेश्चन आंसर से स्ट्रांग होती है, क्वेश्चनिंग एबिलिटी से स्ट्रांग होती है। हाथ यूज करना है, डू। अब डू कर, उससे और स्ट्रांग। अब ये वाला पार्ट साथ में काम करेगा, और जैसे जैसे करेगा ये स्ट्रांग होता जाएगा। दिल, हार्ट, दिल से काम कर, दिल से जियो। फिर स्टमक, फिर पेट के लिए काम करना। पहले दिल के लिए काम करना, फिर पेट के लिए काम करना। अगर पेट के लिए पहले काम करेगा तो दिल निकल जाए। और जिस काम में दिल ना हो, जिस काम में हार्ट ना हो, वो काम अधूरा है, वो काम ही नहीं है एक्चुअली। पेट के लिए काम करना, सिर्फ पैसे के लिए काम करना, फायदा क्या? आज लोगों के पेट ही बड़े हो रहे हैं, दिल तो बड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि काम ही पेट के लिए कर रहे हैं ना। श्री कृष्ण के शब्द थे, और ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, जीसस क्राइस्ट के शब्द। आप यहां क्यों आए हो? आप अपने दिल से इस संसार को प्रेम देने आए। कैसे दोगे? हाथ को यूज करके, कर्म करके। आपके कर्म में, आपके शब्दों में, आपके विचारों में, जिस विचार में, शब्द में, कर्म में प्रेम का भाव है ना, वो कर्म कभी भी खाली नहीं जाता। स्कूल का काम है ये सिखाना, करिकुलम ऐसा होना चाहिए, टीचर ऐसी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए। पिनाकल पब्लिक स्कूल के अंदर हमने इस चीज को बहुत ध्यान दिया है। हर कण कण में इस आत्मा को डालने का प्रयास चल रहा है। ये कंटिन्यूअस काम है, ये रुकेगा नहीं, ये चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। लर्निंग टू बी, लास्ट पिलर, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। लर्निंग टू बी सिर्फ इतना बोलता है, और यूनेस्को ने बड़ा डिसेंटली डिफाइन किया है। A human being, that's their words, a human being which is only intellectually strong, intellectually sharp, and also who is emotionally matured is still incomplete. कैसे? दोनों चीजें हो गई, इंटेलेक्चुअली भी हो गया, इमोशनल भी हो गया, इनकम्प्लीट कैसे हो गया? इनकम्प्लीट है। A human being who is also emotionally and spiritually evolved is a complete human. और स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी का सिर्फ इतना मतलब है, व्हेन आई क्लोज माय आईज आई सी पीस विद इट, एंड व्हेन आई ओपन माय आईज माय एटीट्यूड इज व्हाट कैन आई डू फॉर यू। जब मैं आंख बंद करूं तो मुझे अंदर शांति मिले। ओम शांति शांति शांति। जब मैं आंख खोलूं तो मेरा सिर्फ एक ही भाव हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। अभी हमारी लाइफ उल्टी चल रही। हम आंख बंद करते तो हम अंदर टेंशन टेंशन, नींद नहीं आती।
रात को नींद नहीं आती, गोली खानी पड़ती नींद की। और जिसके अंदर शांति है उसको लेटती नींद आ जाती। आंख खोलो तो मेरी क्या होती है कि लोग मेरे लिए क्या करें, ये मेरे लिए क्या करेगा, ये मेरे लिए क्या करेगा, वो मेरे लिए क्या करेगी। और अगर ये भाव रहेगा कि कोई मेरे लिए क्या करे, तो आप चाहो या ना चाहो, ये तो नियति के अगेंस्ट है, आप दुखी ही होने वाले। घर पे जाके देख लो, एक माँ सबसे सुखी रहती है कब तक, जब तक वो सिर्फ सेवा में लगी है, बच्चों की सेवा, बड़ों की सेवा, इन लॉज की सेवा। जिस मोमेंट पे सोचती है कि मैं तो सबका इतना करती हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं करता, उसी टाइम दुखी हो जाती है और स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस के लिए थॉट क्यों स्ट्रेस का कारण क्या था, ट्रिगर था क्यों आने का, लाना ही नहीं। जीवन का काम है करो दूसरे के लिए, ये है लर्निंग टू बी। रहो कैसे, छोड़ो कैसे अपने जीवन के उन उन चीजों को जिनकी मेरे को जरूरत ही नहीं। छोड़ना, दान देना बहुत डिफिकल्ट काम है हमारे देश के अंदर, क्योंकि चीजें जो मिल गई वो पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं। और अगर छोड़ना नहीं सिखाओगे तो बच्चा ग्रो नहीं करेगा, बड़ा नहीं होगा। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ अगर आगे जाना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको यहां से लोनावला जाना है तो आप 500 सूटकेस भर के तो नहीं जाओगे, 2 दिन के लिए जा रहे हो तो 2 दिन का सामान लेकर जाओगे। लेकिन आपको जहां से आए हो और जहां जाना है, रास्ते में आप सिर्फ सूटकेस ही भरे जा रहे हो। और सूटकेस भरने के चक्कर में बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। जो आपको वर्ल्ड में सुइसाइड का रेट दिखता है, डिप्रेशन का रेट दिखता है, उसका कारण है कि हमको साथ रहना नहीं आता, लर्निंग टू टुगेदर प्रॉब्लम है। और दूसरा है हमको अपने साथ रहना भी नहीं आता, लर्निंग टू बी में भी प्रॉब्लम। अगेन तीनों चीजें, टीचर्स को इवॉल्व कर रहे हैं हम स्कूल के अंदर। मैं पर्सनली बच्चों से अभी कॉन्वर्सेशन शुरू कर रहा हूँ, टीचर्स से शुरू कर रहा हूँ। हमने एक स्ट्रॉन्ग करिकुलम जो कि कॉन्शियस लिविंग का करिकुलम है, कॉन्शियसली कैसे जीते, एक बड़ा ब्यूटीफुल सा कोर्स हमने स्टार्ट किया है। जैसे एज एग्जाम्पल, एक बड़ा सुंदर सा सूत्र है शिव सूत्र के अंदर, इसको बोलते हैं विस्मयो योगा भूमिका। वंडर से योग का जन्म होता है। एक बड़ा ब्यूटीफुल कोर्स स्टार्ट किया है, इसको बोलते हैं नेचर एंड अस। नेचर एंड अस मतलब, अभी क्या हो रहा है कि मैंने अगर बोला ना कि अरे पानी को उबाला तो भाप बन गई, तो बोलते इवेपोरेशन हो रहा है। ऊपर बादल बने, कंडेंसेशन हुआ तो नीचे पानी आ गया, बारिश हो गई तो कंडेंसेशन हुआ। तो क्योंकि मुझे हर चीज का साइंस समझ में आ गया है ना, तो मैं उसके मिरेकल को छोड़ दिया है, मैंने उसके वंडर को छोड़ दिया। स्काई ब्लू है, ये वंडर है। स्काई क्यों ब्लू है मैं साइंस में सीख लूंगा, लेकिन उसके वंडर को तो देखो। रेनबो में 7 कलर है, रेनबो आ जाता है, वंडर। इस वंडर को अगर आप ध्यान से रखोगे ना अपने पास संभाल के, साइंस आनी चाहिए, इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन ये वंडर को नहीं मार देना, इस विस्मय को नहीं मार देना। ये है लर्निंग टू बी। साइंस ऑफ सेल्फ के अंदर हम लर्निंग टू बी के मल्टीपल एलिमेंट्स पे काम करते हैं। जैसे ये एक ब्यूटीफुल, आपके बच्चों को भी शायद एक ब्यूटीफुल बुक मिलेगी अभी, जिसमें हमने एक बड़ी सुंदर बुक बनाई है, नेचर इन अस। बड़े सिंपल फैक्ट्स है, लेकिन कभी हमने उस नजर से देखा ही नहीं उस फैक्ट को, क्योंकि हमने सब चीजों को बड़ा इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया। तो लर्निंग टू नो में इंक्विजिटिवनेस, इंटेलेक्चुअलनेस बढ़ाना है, लेकिन होल तब बनेगा, होलिस्टिक ह्यूमन तब बनेगा जब वो वंडर को नहीं माने। आखिरी थॉट आपको दे रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट थॉट है, माइंड में रखिएगा कि आप जो होते हो ना, आपसे वही बहता है। आप जो होते हो आपसे वही निकलता है।
आप कुछ करते नहीं, आप जो हो आपसे वही बेहतर है। बच्चा सबसे ज्यादा खुश कब होता है? जब वो पहले 5 साल में होता है, फिर वो दुखी होना शुरू हो जाता है, और बूढ़ा होते होते तो एकदम सैड ही हो जाता है। ये कैसा जीवन? जबकि बच्चा अगर एक्स अमाउंट पे, लेवल ऑफ 1 पे सुखी है ना, तो मृत्यु के समय यानी ओल्ड एज में तो उसका 10 गुना 100 गुना खुश हो जाना चाहिए उसे। यहाँ तो उल्टा चल रहा है। तो कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है ना। ये एजुकेशन सिस्टम में कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। ये थॉट प्रोसेस में कहीं कुछ प्रॉब्लम है कि हम बच्चों को बड़े वेल रेड तो बना रहे हैं, वेल रेड तो बना रहे हैं, इंटेलिजेंट तो बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ में अहंकारी भी बना रहे हैं। क्यों? ज्ञान आ गया तो अहंकार क्यों आना चाहिए भाई? जबकि बड़े होते होते अहंकार कम हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। बच्चे में ज्यादा होना चाहिए, बड़ों में होना ही नहीं चाहिए। जैसे बच्चे में ज्ञान, हर चीज का ग्राफ बढ़ना बहुत जरूरी है। ज्ञान जीरो से ज्ञान ज्यादा, अहंकार ज्यादा से एकदम खत्म। प्रेम करना बच्चे को ज्यादा अच्छे से आता है, बड़े को नहीं आता। बच्चा सबसे प्रेम कर लेता है, बड़े को तो बस 2-3 लोगों से ही प्रेम होता है। तो प्रेम थोड़ी है, वो तो मोह है। बच्चे को प्रेम करना सिखाना। बच्चा सबके साथ रह लेता है, बड़ा नहीं रह पाता। परमार्थी बनाना, तो हर चीज का ग्राफ बड़ा करना है, उसके लिए इन 4 पिलर्स को स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करना है। और पिनाकल पब्लिक स्कूल के अंदर हम इन चारों पिलर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ट्रायंगल के तीनों त्रिकोणों पे काम कर रहे हैं। टीचर्स, एनवायरमेंट और कोर्स। एक करिकुलम होना चाहिए, टीचर्स उसको इंप्लीमेंट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और एनवायरमेंट ऐसा हो जहां पर ये सब चीजें बच्चा अपने आप कर ले। अगर वो ये सब कुछ कर पाएगा, तभी वो स्वयं का दीपक स्वयं बन पाएगा। उसे किसी और दीपक की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं का प्रकाश स्वयं बन पाएगा। आत्म दीपो भव। हमारा एम ये है कि जब तक वो बच्चा अपने स्कूल से पास आउट हो, वो आत्म दीपो भव, ऐसा तो वो हो सके, उसके अंदर की ज्योति प्रज्वलित हो जाए और वो संसार को प्रकाश दे, ना कि किसी और प्रकाश का वेट करता रहे, किसी और का वेट करता रहे कि वो मुझे रास्ता दिखाएगा, वो सबको रास्ता दिखाए। वो अपनी राह खुद बनाए, वो किसी और की राह का वेट ना करे। वो अपने निर्णय खुद ले, किसी और के निर्णय का वेट ना करे। और वो संसार को प्रेम और प्रेम ही स्प्रेड कर पाए, ना कि संसार में ईर्ष्या और घृणा के साथ भेजा। Okay, thank you very much. Let us take up some questions now. Think, absorb, and ask some questions. There are many written over here. Okay, let me first call Simon. I'll help you raise the hands. I'm lowering all the hands right now, and I'll get some people over here. Can you hear me, Mr. Balwani? Hello? Yes, sir. हाँ, आप मेरे को बताएंगे कि आप क्वेश्चन क्या है? आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे। सर, मैंने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइम्स? हाइम्स मतलब जो आप जो भी मंत्र बोलते हैं ना, उनको हिम्स बोलते हैं। ओके, मिस्टर योगेश। Yes, sir. Hi, sir. Good afternoon. Sorry, good morning. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
माय क्वेश्चन रिगार्डिंग मेरा बच्चा है वो पिनाकल स्कूल में ही है और फर्स्ट क्लास में है, बट आई फाउंड सम डिफिकल्टीज बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो चैप्टर्स सिलेबस या जो अलाइड चीजें हैं उसमें जो लर्निंग जो आपने बात करी थ्रू आउट द टॉक, वो लर्निंग और एक जो रट्टा वाला है, most of the questions, most of the English chapters, most of the EVS, they all are to learn, not to learn. They have to read and learn, read and memorize. रट्टा मारना है, रट्टा मारना है, क्योंकि वो एक्चुअली मुझे भी वो एक्सप्रेस नहीं है कि हाउ टू उसको कैसे वो पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कि सम स्पेलिंग्स, सम चैप्टर्स क्वेश्चंस। देखो अभी क्या होता है ना, मैंने आपको बोला कि हमारा एक सिस्टम है एजुकेशन का जो कि देश से हमको मिला है, गवर्नमेंट से हमको मिला है, सीबीएसई से हमको मिला है। उस सिस्टम को हमें इम्प्लीमेंट तो एज इट इज करना ही है, लेकिन पैरेलली अभी हम साथ साथ में, वो एक्चुअली इस साल से शुरू हुआ और फर्स्ट और फिफ्थ में मैंने अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है, फिफ्थ से तो कंप्लीटली शुरू हो गया है। हम पैरेलली साथ साथ में उस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को, जो कि मैंने अभी 4 पिलर्स बोले ना, वो इंप्लीमेंट करना शुरू कर रहे हैं। तो हायर स्टैंडर्ड्स में तो ये बहुत इमीडिएटली दिखना शुरू हो जाएगा अभी, और फर्स्ट और फिफ्थ में अभी हम बाय फ्रॉम नवंबर स्टार्ट कर देंगे। आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो अभी हम चाहे इस स्कूल में रहो या कहीं भी रहो, वो एग्जिस्टिंग सिस्टम तो एज इट इज ही रहने वाला है, लेकिन उसको हेल्प करने के लिए हमने पैरेलल सिस्टम बिल्ड करना शुरू कर दिया है। और ये पैरेलल सिस्टम हायर स्टैंडर्ड में तो 2-3 महीने हो गए स्टार्ट किए हुए, अभी यहाँ पर हम फर्स्ट टू फिफ्थ हम इमीडिएटली स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ या मैक्सिमम बाय नवंबर से। तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि वो रट्टा मारने की क्या जरूरत है, लेकिन कुछ चीजें अभी अगर बच्चे को सीखना आ गया ना, जो मैंने पहला पॉइंट बोला था लर्निंग टू नो, बच्चे को सीखना सिखा दिया ना, तो वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो अपने आप सीखना शुरू कर देता है उस चीज को। तो थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आई थिंक अभी कुछ समय में ये सब चीजें इंप्लीमेंट होनी शुरू हो जाएंगी जो मैंने बातें बोली। इसमें वन मोर पॉइंट है, बिकॉज स्कूल इज इम्प्लीमेंटिंग दिस स्टैंडर्ड्स, बट पेरेंट्स आर समहाउ डोंट कम टू नो दैट व्हाट प्रैक्टिस स्कूल आर मेकिंग टू लर्न द चाइल्ड, बिकॉज अभी हम आके उसको अलग स्टैंडर्ड से पढ़ाएंगे और स्कूल में टीचर्स अलग स्टैंडर्ड से पढ़ाएंगे, तो आई थिंक देयर में बी अ कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल सही बोला। तो आज आपका पहला सेशन है मेरे साथ में ना, मैं अगले महीने आई थिंक 23rd 24th को स्कूल आ रहा हूँ, तो मैंने 2 घंटे का स्लॉट रखा है पेरेंट्स से बात करने का। तो आपको मैं बहुत सारी चीजें उधर भी बताऊंगा, और ये जो प्रैक्टिस है ना कि स्कूल में कैसे हो रहा है और पेरेंट्स को कैसे करवाना है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरी टीम अभी यहाँ पर है, वो नोट कर रही है, और ये मैं एक्चुअली एज ए फीडबैक लेता हूँ कि किस तरीके से पेरेंट्स को कम्युनिकेट किया जाए कि आप किस तरीके से कराओ, हमने किस तरीके से करा है। बिल्कुल सही पॉइंट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू योगेश, थैंक यू वेरी मच। Yes, Mangesh. Good morning, Rohit ji. Good morning. Good morning. For a long time, I have attended many sessions for the entrepreneurship. In the year 2021, you have mentioned about the education. From that time, I am following all those activities with respect to education also. But somehow entrepreneurship is on the prime, and now education facilities are going on. Thanks for your inputs and insights from this day one. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. I just want to know one thing. बोलिए। All these activities will be correlated with NEP 2020. Yes, it will be. How it will be correlated with this? वो हमारे कोर्स कंटेंट के अंदर बिल्ड कर देंगे, बिकॉज इसमें ना अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं गया, तो हर एक पिलर में ना एवरी पिलर हैज इट्स ओन एलिमेंट्स व्हिच आर पिक्ड अप फ्रॉम एनईपी ओनली। ओके। वो एलिमेंट अगर मैं हर एक पिलर को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये एलिमेंट आ गया। दिस इज स्किल डेवलपमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एनईपी। ओके।
लर्निंग टू डू में स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हमने इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। ओके ओके। और अनदर पार्ट, ये जो भी है अभी उसका टोटल बिजनेस मॉडल, ये जो मॉडल है ये सब जगह पे करने के लिए हाउ टू इंटरेक्ट विथ यू और कांटेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। हाँ, so you can connect with Kajal. She's my team member here. So you can. I'll post the number. Can you put Kajal's? I'm actually putting the numbers of all the numbers over here right now. किसी को किसी communicate करना हो, they can communicate. And उसमें आप किसी भी नंबर पे बात कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा किसी का। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। Rajesh, can you put the number, please, of let me share the slide over here. 1 second. Just give me 1 second. इस स्लाइड पे नंबर्स हैं, आप किसी भी नंबर पे काजल को या पिंकी को मैसेज करके यू कैन कनेक्ट, और यू कैन ईमेल आल्सो ऑन दीस टू नंबर्स। यस पलक। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर ये एजुकेशन से रिलेटेड अभी समझ में आ रहा है जो आप बता रहे, स्कूल में भी चलो अच्छा है, और अभी इंग्लिश मीडियम का दौर है और हम पढ़े हुए हिंदी मीडियम, तो जहाँ हमें प्रॉब्लम आती है वहाँ हम बच्चों को कैसे कोऑपरेट करें? हम सिखा देंगे, आप चिंता नहीं करो। अच्छा ऐसा, क्योंकि ऐसी कई बातें होती है फेस करनी पड़ती है जब बच्चों को कुछ मैसेज है, कुछ समझाना है, हमें हिंदी आती है, फिर हम इंग्लिश को उसको फेस करें, उसको कन्वर्ट करें, फिर बच्चों को समझाएं, तो उसके लिए फिर बहुत क्रिटिकल बात हो जाती है कभी-कभी। क्योंकि इन शब्दों का अर्थ भाव का अर्थ नहीं होता ना। नहीं, वो सही बात है, पर हम आपने समझेंगे तब उनको समझाएंगे ना। हाँ, तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हम होलिस्टिकली इतना समझा देंगे कि उनको आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अच्छा ऐसा। बाकी दो चीजें तो अच्छे से कीजिए। एनवायरनमेंट अच्छा रखिए घर का, यस। और साथ में कोर्स बस इतना रखिए, ट्रैक रखिए, सब कुछ चल रहा है, इतना आप कर हाँ सकते चलता है, कभी-कभी बच्चे आगे पढ़ते हैं तो पीछे भूल जाते हैं, वो भी चलो लेके चलते हैं भाई, बच्चों को सब याद रहे। हाँ, याद रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है हाँ आपको। मतलब वही समझा के कि बच्चों को ये पॉइंट है, ये तुमको ध्यान में रखना है, वो समझाते हैं। हाँ तो हमारी तो खुद की प्रॉब्लम वही आती है ना, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बीच में। नहीं, कोई बात नहीं, वो हम पूरा कर देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए उसकी। ओके, थैंक यू। यस मिस्टर पुरोहित। Hello. हाय। Good morning, Rohit ji. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Ajay, I have one query. See, our education system is correlated with the assessment and the examination pattern only on the basis of recapitulation of the knowledge, isn't it? यस। Now, I mean, moving towards NEP, could you suggest internal assessment modalities in a different way, whereupon we can explore the talents of the children rather than only getting them recapitulation and assessing? This is my personal view. So understand, when we are running the school right now, no, so what we realized is it's very important to have a continuous evaluation process rather than a evaluation process. Okay. Now, continuous evaluation means what? Continuous evaluation does not mean an evaluation which is done purely on exam basis. Okay. Continuous evaluation means it is done on various parameters which follow these 4 pillars only. So if a person is excellent in learning to live together,
इट इज गिवन लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। लर्निंग टू लिव टुगेदर तो आप सीख नहीं सकते ना एग्जाम देकर, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। Very true. Very. अगर पर्सन इज वेरी गुड इन लर्निंग टू बी, तो हमने क्या किया, दैट्स व्हाई सर वो तीनों पिलर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। टीचर को अच्छा आना चाहिए, एक फ्रेमवर्क वाला कोर्स होना चाहिए जिसमें टॉपिक्स हैं, इसको ओपन नहीं रख सकते, और तीसरा है एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब अगर लर्निंग टू लिव टुगेदर जो कि बड़ा ओपन नेट चीज है, उसको अगर मैंने कोर्स में कन्वर्ट कर दिया तो सडनली उसमें एक फ्रेमवर्क आ जाता है। अब उस फ्रेमवर्क के अंदर तो इवैल्यूएशन हो ही सकती है ना, बिकॉज हर फ्रेमवर्क मतलब उसका डैशबोर्ड बन सकता है, Yeah, yeah. और डैशबोर्ड का इवैल्यूएशन पॉसिबल है। इंडियन सिस्टम एंड वर्ल्ड ओवर दैट सिस्टम, नॉट जस्ट इंडियन, it is based on exams, but as a school we can take a responsibility of doing continuous evaluation, because exam is also one of the element. As I said, कि चाबी तो मिल जाएगी एग्जाम से मार्क्स लाके, जो कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है, Uh-huh. हम वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ उसको नहीं देख सकते। तो पॉइंट इज कि अगर एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपका एक एलिमेंट टूटा हुआ है, उसको ठीक करना चाहिए, लेकिन बाकी एलिमेंट को छोड़ देना चाहिए, वो बहुत बड़ा क्राइम है। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, एंड द अदर एलिमेंट्स आर टेकन केयर ऑफ बाय कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन प्रोसेस, which can be done only in an institute. It cannot be done or at home. It cannot be done like that. Right, sir. Thank you very much. Sir, can I get a recording of today's webinar on your feature on? Be available on the YouTube, so we'll share the link with all of you. Okay, okay. Thank you very much, sir. Wish you all the best. God bless you. Thank you. Yes, Manish. Hello. Yes. Good morning, sir. Good morning. Good morning. सर एक्चुअली ड्यू टू कोविड बहुत सारे बच्चों को इश्यू हुआ है जो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं सर, क्योंकि कोविड के हिसाब से 2 इयर्स तो बच्चे स्कूल में गए नहीं, ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस और सब चालू था। तो अभी सर उनका जो कॉन्फिडेंस है बहुत लोअर हो चुका है, तो हाउ कैन इम्प्रूव द योर कॉन्फिडेंस? बच्चों का कॉन्फिडेंस अभी अपने को ऊपर ले जाना है, तो कैसे ले जा सकते हैं? अब मैंने आपको उसका प्रैक्टिकली बताता हूँ, ठीक है? यस सर। मेरे बेटे के साथ, ठीक है, क्योंकि अब बच्चा तो बच्चा है। एक चीज मुझे समझ में आ गई थी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम कंटिन्यूसली इसी एजुकेटर हैं और एजुकेशन में है, तो होलिस्टिक एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यस सर। उसका पैशन ढूंढवा दिया ना, तो वो बच्चा उसके अंदर अपना जीवन ढूंढ लेता है। अब ये काम ना टीचर के साथ साथ पेरेंट का ज्यादा होता है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? यस सर। पैशन ढूंढवा दिया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मेरे बेटे को चेस पसंद था। ओके। पता नहीं, तो मतलब पसंद था। इस पूरे के पूरे लॉकडाउन के बाद जो कॉन्फिडेंस गया, स्कूल जाने का मन भी नहीं था, तो स्कूल क्यों? यस सर। ये आदत छूट जाती है, और वो उस एज में था जिस एज में ऐसा होने का चांस होता है, 11 से 12 की एज होती है ना, 10। तो जैसे ही चेस की तरफ लेकर गए ना, अंदर रूपांतरण आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। अब वो अपना सिलेबस, अपना टाइम टेबल खुद बनाता है, अपना डैशबोर्ड खुद बनाता है, चेस का टाइम खुद निकालता है। उसने मैं जीवन ढूंढ लिया। ओके। ना ऐसा दरवाजा है जिसके अंदर घुस गए ना अगर, वन ऑफ द एलिमेंट।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। बच्चों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए आपको कंटिन्यूअसली उनको उनके पैशन की तरफ लेके जाना पड़ेगा, जो कि दूसरा पिलर है लर्निंग टू डू का। लर्निंग टू नो में नहीं होगा, लर्निंग टू डू में होगा। और जब हम बहुत सारी एक्टिविटीज अभी स्कूल में कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पे वो चीज मिल जाती है बच्चे। ओके मनीष जी, जरा आप अनम्यूट कर दीजिए एंड जस्ट टेल मी वेदर यू अंडरस्टूड। आपकी आवाज नहीं आ रही है, थिंक वो कहीं पर है। ओके गणेश, यस गणेश जी। सर गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली आपने सारे पॉइंट कवर किए और पर्सनल लाइफ में भी काफी अच्छे रहेंगे करीब सर, काफी अच्छे पॉइंट्स थे। एंड सर बट एक पॉइंट मिसिंग था वहाँ पे, जो मैंने भी आई थिंक चैट में डाला हुआ, स्पोर्ट्स को लेकर सर आपका कोई व्यू नहीं था। लर्निंग टू डू स्पोर्ट्स है, उसमें स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा एलिमेंट है। स्कूल में सर आई थिंक मेरी बेटी 4th में और जूनियर केजी से, बट मैंने 6 साल में कोई ऐसा देखा नहीं है कि स्पोर्ट्स के लेके स्कूल में कोई मतलब 10% भी कोई सीरियसनेस हो। और अगेन सीबीएसई बोर्ड में भी इंटरनल एक उनका स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है, आई थिंक वो चार्जेबल है, कुछ होता होगा ईयरली, पूरे इंडिया का होता है। उसमें भी कभी अपने स्कूल में कभी किसी ने पार्ट नहीं लिया, नहीं ये सर सीबीएसई स्कूल पार्ट लेता है, आई थिंक पूरी इंडिया होता है वो, तो उसमें भी अपने स्कूल ने कभी पार्ट लिया नहीं है। आई थिंक नहीं, इस बात को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट फीडबैक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फीडबैक है, डेफिनेटली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस साल। इवन डीपीएस वगैरह सारे सीबीएसई स्कूल के बच्चे जाते हैं उसमें, स्पोर्ट्स में पूरे इंडिया के बच्चे उसमें कॉम्पीट करते हैं, बट अपने स्कूल का कोई मतलब उसमें कंपटीशन रजिस्टर्ड ही नहीं हम लोग वहाँ पे। और स्पोर्ट्स के लिए मतलब बहुत ही पर्सनली मैं फील करता हूँ, जितना मैं एज ए पेरेंट में काफी सारा अपने बेटी के पीछे मेहनत वो करता हूँ। अभी आपने पैशन के बोला तो उसके लिए वो पैशनेट भी है, 4 to 5 आवर्स वो उसमें अपना टाइम भी निकाल लगाती है। बट स्कूल की तरफ से कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता कि अपने को इंकरेजमेंट मिले वहां से। नहीं, वो कौन सा स्पोर्ट्स में खेलती है? वो सर मार्शल आर्ट में, ताइक्वांडो में। और आई थिंक अभी गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से सीओई में सेलेक्ट भी हुई है, काफी उसका मतलब अच्छे लेवल पे। कांग्रेचुलेशंस, आई विल एंश्योर। अभी एक्चुअली हमने ना 3 एलिमेंट्स को स्ट्रांगली डाल दिया है। पहला है स्पोर्ट्स, दूसरा है म्यूजिक, तीसरा है आर्ट्स। इन 3 चीजों को हम बहुत स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने वाले हैं इसी साल से। और 2 स्पोर्ट्स स्पेसिफिकली, 2-3 स्पोर्ट्स स्पेसिफिकली हम उस पर फोकस करेंगे। सब पेरेंट्स से एक फीडबैक लेने के बाद वो फीडबैक फॉर्म आपको मिलेगा कि कौन से स्पोर्ट्स पे आप चाहते हैं कि हम फोकस करें, वो स्पोर्ट्स पे फोकस ज्यादा किया जाएगा और धीरे धीरे बाकी स्पोर्ट्स भी एंटर करवाएंगे। तो आपका फीडबैक बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल करेक्ट है, और ये चीज को हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं इस साल से ही। और स्पोर्ट्स के अंदर, चाहे वो ताइक्वांडो हो, चाहे वो चेस हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, वी विल एक्चुअली बी पुटिंग इन लॉट ऑफ फोकस। और स्कूल पार्टिसिपेट भी करेगा ऑल इंडिया लेवल पर, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे नेशनल स्कूल्स हो। और वो हम एक्चुअली इंपॉर्टेंस भी देंगे बच्चों को। जो सपोज कुछ बच्चों को कोचिंग करनी होती है और उनको कोचिंग के लिए सपोज स्कूल से कुछ एग्जेम्पशन चाहिए, तो एग्जेम्पशंस भी देंगे। तो वी आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क ऑन स्पोर्ट्स। सो इस साल से आप ये ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे स्कूल के अंदर। तो यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, वी टेक दिस फीडबैक वेरी सीरियसली। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। यस सुरेश। सूरज आप हैं? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? बिकॉज जिसने ऑलरेडी का आंसर हो गया है वो, चलिए तो हो गया। सूरज आप हैं क्या यहाँ पे? डू यू हैव अ क्वेश्चन? ज्योति। Good morning, Rohit ji. गुड मॉर्निंग। I had asked a question. I can't hear you. I asked a question in the question answers. You wait 1 second. Let me see it. I don't see it.
This Bhagavad Gita series, is that over? It's not over, it is continuing. And it's the day is changed. No, it's Sunday only. This Sunday only I was doing this session. That's why I did not do it. So next Sunday we'll be back to. Yeah, every Sunday it is. Was there last Sunday also? It was this Sunday. This Sunday was not there. Next Sunday will be there. Okay. Thank you. Thank you very much. I'm sorry if I. No problem. Thank you. Thank you. All right. I think most of the questions are answered. If there are any question left, I would be happy to answer. So there is, I would request all of you to look for, speak to the coordinators, and you're invited for this 2-hour talk session with me when I'm there in the Pinnacle School on 23rd or 24th. We'll communicate the date to you. And good to have you, all of you here. So if there are no more questions, I can conclude. One question by the Ben. Yes, Vendra. मॉर्निंग सर, देवेंद्र बोल रहा हूँ, कोलकाता से बोल रहा जी देवेंद्र, बोलिए। हूँ। आपका सेशन हम हर वक्त सुनते हैं, तो मुझे ये पूछना था, हम कोलकाता से बोल रहा हूँ, तो मेरा बेटी 5 साल की है, वो KG2 में पढ़े, तो आपका साथ हम कैसे एसोसिएट हुए, तो उसका बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो उस टाइम? सोचना पड़ेगा देवेंद्र जी, आप एक बार मैसेज कर दीजिए काजल को या पिंकी को. We'll find out a way to get connected. थैंक यू सर, थैंक यू। Yes, Suraj, try to unmute. I couldn't hear you. Hello. Yes, Suraj. Good morning, sir. Good. सर मेरा सजेशन ये है कि सर मैंने भी जैसे बेटे को मैंने भी वहाँ पिनाकल में एडमिशन करवाया है। मैं भी कुछ सर CBSE बोर्ड से मैंने स्टडी किया हुआ है, मैंने आर्मी स्कूल से। और मेरा जो बैकग्राउंड है सर पूरा आर्मी लेवल का ही है, फादर वादर सबका जी। तो मैंने इसी सब वहाँ पर एडमिशन करवाया CBSE स्कूल में। सर वहाँ भी चलिए मैंने इनको सजेस्ट किया था कि सर यहाँ NCC जो है, NCC वाला जो कैडेट ग्रुप्स वो वहाँ है नहीं एक्चुअली। वहाँ पर वो लोग ने बोला है कि हमने अप्लाई किया मैं इसको काफी टाइम से बोल रहे हैं सर, अभी तक उसका हमें कुछ हुआ नहीं है सर। मैं लेता हूँ। NCC is very good. NCC और NSS दोनों पे करते हैं काम। हाँ, जैसे NCC एंड देन सर उसके स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स में काफी जो हमारे लेवल पे जो बच्चे आगे जाना चाहिए स्कूल लेवल पे, स्कूल लेवल एंड देन स्टेट लेवल पे सर, उस तरह सर कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए सर वहाँ पर। जी मैं पक्का इस पे मैंने जैसे पहले ही बोला था, इस पे बहुत स्ट्रांग फोकस जा रहा है स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर। तो अभी ये दोनों चीजों को बहुत सीरियसली लिया जाए। इसी साल में ट्रांसफॉर्मेटिव चीजें देखेंगे, चिंता नहीं कीजिए। अभी सब उनको होलिस्टिकली डेवलप करने के लिए स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हम सब समझते हैं, और वो रहेगा ही रहेगा स्कूल के अंदर, चिंता नहीं। ये मिस दूसरा थर्ड सजेशन मेरा ये है कि सर जो भी ये कोविड की सबसे 2 साल जो बच्चों का स्किप हुआ है स्टडी काफी, तो सर उसमें इनका जो IQ लेवल काफी डाउन हो गया है। मे भी हम उनको स्टडी घर पे भी करवा रहे हैं, उनके ट्यूशन क्लासेस भी करवा रहे हैं सर। उस तरह जो उनका ग्रिप है, जो कैचअप उस तरह उनका आ नहीं रहा है सर, कैचअप उस तरह उनका। देखो अभी IQ किसी का कम नहीं होता है, वो आदत छूट जाती है। तो आदत को हमको वापस बिल्ड करने के लिए पेरेंट्स को भी टीचर्स को मिलके काम करना पड़ेगा। मैं वापस से एक फ्लोट करूंगा एज ए थिंग फॉर PTA, जो हमारा पेरेंट टीचर एसोसिएशन है। वो जो इनिशिएटिव पेरेंट्स और टीचर मिलके कर सकते हैं ना बच्चों के लिए, हम सब मिलकर करेंगे। अगर आप उसका पार्ट होना चाहते हैं तो यू कैन सजेस्ट टू बी पार्ट ऑफ इट। I will definitely there sir. So if you want to, and I'm opening it up for everybody, all those who really want to participate in the parent teacher association, please go and do it right now. I'll be personally taking a meeting of all the parents on 23rd and 24th, and we are extremely serious about it. ये पूरा एजुकेशन जो बिल्ड कर रहे हैं ना अभी हम, ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये बहुत सीरियस थॉट जा रहा है इसके ऊपर अभी। और वहां से निकला हुआ हर बच्चा अंदर से बोलना चाहिए आत्मदीपो भव। अगर वो अंदर से आवाज नहीं निकलेगी तो फिर वो फायदा नहीं है, उसको ढूंढता रहेगा प्रकाश दुनिया में, उसको प्रकाश स्वयं बनना है। ठीक है सर, मेन चीज मैंने आपके फोकस के लिए कल आप NCC और उसके स्पोर्ट्स के सर वापस आप बहुत फोकस किया सर इसके लिए। श्योर 100%। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।
Yes, Jay. Good morning, sir. Good morning, Jay. Boलिए. Okay. So the session you are saying like it will happen on 23rd and 24th. Is for any age category for the kid, No. or like how it will be like, because my recently my kid is in just in kindergarten. Doesn't matter. Earlier the better. Okay. जितना early उतना better. Okay, and where it will be online, or how, like what will be interaction? Actually, I might miss the conversation early. It will be in the Pinnacle School. I will be coming to Ahmedabad. I'll be in Gandhinagar at that time. It is an offline school. Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you so much for this. Yes, Monidev. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. सर इस बार जो नंबर कम आए हैं बच्चे के, तो उसमें तो रीडिंग ढंग से अच्छे से कर नहीं पाती है, तो फिर लर्न कैसे क्या करें? हाँ, तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। जब मुझसे मिलने आइए एक बार, मैं ये सब चीजें डिस्कस करता हूँ, कोई इशू नहीं। बच्चा कम नंबर आए या ज्यादा नंबर आए, बच्चे को पूरा बच्चा बनाना जरूरी है, पूर्ण रूप से उसको करना जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट। हाँ यस सर, वो समझती ही नहीं है, लर्न करवा भी दूं तो उसके बाद फिर बाद में पूछो तो फिर वो भूल जाती है, उसका मेन प्रॉब्लम है। भूलने का इशू नहीं है, वो कहीं ना कहीं पे लर्निंग का मेथोडोलॉजी सीख नहीं है, वो हम बात करेंगे। अभी जब मैं 23-24 को वहां पर आ रहा हूँ ना, तो उनमें से एक दिन आप प्लान कर लीजिए। आई विल कम एंड मीट, यू कैन कम एंड मीट मी इन द स्कूल। ठीक है, थैंक यू सर। okay, all right, thank you very much. Let's conclude. The things are over here. पलक आप चिंता नहीं कीजिए, हम इन सब चीजों को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो कल्चरल एक्टिविटीज हो, स्पोर्ट्स हो, सब में हम बच्चों को भी एनकरेज करने वाले हैं, सब चिंता नहीं कीजिए। वी विल डू लॉट ऑफ स्टफ ओवर देयर इन द स्कूल ओनली। ओके, let's conclude today's program with a prayer, and I wish to see as many of you as possible in the school on 23rd or 24th. Your feedbacks are written and we will work upon those feedbacks immediately. Thank you.